बगलामुखी के नाम से विख्यात है और आदिकाल में कहते हैं कि रावण ने गुप्त रूप से माँ बगलामुखी की पूजा की थी। बाद में रामचंद्र जी को आदेश हुआ था कि अगर आप रावण पे विजय श्री पाना चाहते हो तो आप माँ बगलामुखी की पूजा करो, तब आप रावण पे विजय श्री पा सकते हो। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने यहाँ पे पूजा की स्थापना की है और आदिकाल का प्राचीन स्थान का ये मंदिर है। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾਮੁਖੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੰਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਛੁਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀ ਮਾन्यता है। तो इस समय आचार्य दिनेश रतन जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे उनसे। पहले तो सर नमस्कार और जय माता दी। जय माता दी। सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल का हमारे बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी में हार्दिक स्वागत है जी। हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास क्या है, पुरातन समय में ये कितने साल पुराना है और इसकी मान्यता क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये एक दिव्य स्थान है। सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के नाम से विख्यात है और आदिकाल में कहते हैं कि रावण ने गुप्त रूप से माँ बगलामुखी की पूजा की थी।
जी। बाद में रामचंद्र जी को आदेश हुआ था कि अगर आप रावण पे विजय श्री पाना चाहते हो तो आप माँ बगलामुखी की पूजा करो, तब आप रावण पे विजय श्री पा सकते हो। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने यहाँ पे पूजा अर्चना और स्थापना की है और आदिकाल का प्राचीन स्थान का ये मंदिर है। जी। अच्छा, सर कुछ ऐसी मान्यता भी है यहाँ पे कि जो श्रद्धालु जो आते हैं अ, वो कुछ मन्नत मानते हैं और वहाँ पे जो आपके हवन कुंड देखे गए हैं, उसमें अगर हवन करवाया जाता है तो संपूर्ण होता है जो उनकी इच्छा होती है या वो अगर माता से माँगते हैं तो उनकी इच्छाएँ पूर्ति होती हैं। देखिए, जब आपने मंदिर में दर्शन किए होंगे, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे 36 यज्ञशालाएँ हैं। जी, ये बात विदित है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे माँ के सम्मुख आकर के पूजा पाठ हवन इत्यादि कराता है तो निश्चित रूप से उसके मन की कामना तो पूर्ण होती है और माँ के चमत्कार से वो एक बार माँ के दर पे आकर के एक बार जब नतमस्तक हो जाता है तो वो उससे बार बार बुला करके उसके हर प्रकार के कार्य को पूर्ण करती है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि माँ बगलामुखी में आप जो कोई श्रद्धालु हवन कराता है उसकी हर एक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा सर एक सवाल है मन में कि जैसे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और पीला ही यहाँ पे अगर कलर देखें आपका भी चोला जो है वो पीला है और आपने जो गमछा लिया हो वो भी पीला है और पीले ही रंग का जो है वो ब्रेसलेट यहाँ पे दिया जाता है, कुछ धागे भी पीले हैं। इस पीले रंग की महत्ता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर किसी देवी देवता का कोई ना कोई रंग होता है। जी, जैसे हम माने कि भोलेनाथ का रंग सफेद होता है तो माँ दुर्गा का रंग लाल होता है। उसी प्रकार माँ बगलामुखी का जो प्रिय रंग जो है वो पीला है। तो पीले रंग का प्रिय होने करके माँ के आप यहाँ सारा वातावरण पीला पीला ही देखेंगे। हवन सामग्री में पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। आपके बैंड भी हमारे पीले होते हैं, धागा भी हमारा पीला, तो हमारे वस्त्र भी पीले होते हैं। तो पीला बेसिकली माता रानी का मूल रूप से पसंद किया जाने वाला सर्वप्रथम रंग है, इसलिए सब कुछ यहाँ पे पीला पीला होता है। अच्छा सर हवन कुंड यहाँ पे काफी दिखाई दिए थे और उसकी आपने महत्ता बताई कि यहाँ पे हवन कुंड होते हैं। अच्छा कोई भी श्रद्धालु जो है वो अगर अपने नहीं आना चाहता यहाँ पे नहीं करवाना चाहता तो घर में उसके क्या हवन पॉसिबिलिटी है कि उसके घर में किया जा सके माता बगलामुखी जी का? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी एक तंत्र की देवी है। तंत्र की देवी में आपका प्रश्न है कि घर में हवन करना, तो घर में हवन करना उचित नहीं है, क्योंकि तंत्र जो होता है वो एकदम से फलदायी होता है कलयुग में। तो तंत्र में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो वो अहित भी, अगर हित जल्दी होता है तो अहित भी जल्दी होता है। तो हित और अहित को देखते हुए हम श्रद्धालुओं को यही बोलेंगे कि घर में आप हवन ना कराएं, सिद्ध पीठ स्थान पे ही जहाँ पे माँ का वास हो वहीं पे हवन कराएं, ताकि उनको हवन का पूर्ण फल मिल सके और उनकी कामना पूर्ण हो सके। अच्छा कोई इतिहास में ऐसी कोई घटना घटी हो इस मंदिर को लेके क्योंकि स्थापना मैंने पहले भी बात बोली थी कि इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए। तो इतिहास जो है यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर की स्थापना कब हुई? देखिए, आदिकाल में जो हमारे गुरुजन जो सुमागे हैं वो बोलते थे कि आदिकाल से स्थापना है देवी माँ की। जी, बाकी हरिवंश पुराण में माँ बगलामुखी के बारे में लिखे कि बनखंडी नाम स्थान पे माँ का मूल स्थान है, जहाँ पे श्रद्धालु कलयुग में जाकर के इस भव्य दरबार में आकर के अपनी हर प्रकार की मन्नतों को, हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो स्थापना के विषय में मैं यही बोल सकता हूँ कि आदिकाल से माँ की स्थापना यहाँ पे हो रखी है। अच्छा ये किसी जैसे कि बहुत सारे हिमाचल में मंदिर हैं जिसकी बहुत सारी मान्यता हैं। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो पांडवों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जैसे मान के चलिए शिवलिंग की वहाँ पे स्थापना करी थी। क्या इस माता जी का मंदिर जो है वो शक्तिपीठ जो बने हुए हैं, क्या उनकी स्थापना किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी या किसी पुरातन समय में जो मैंने ज़िक्र किया पांडवों का या उस प्रकार से कइयों द्वारा की गई थी? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्तिपीठ का मतलब होता है जहाँ सती के अंग ग्रह हैं, उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। और सिद्ध पीठ होता है जहाँ पे साधक साधक लोगों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा उस जगह को जागृत किया हो, अर्थात उस पर स्थापना की हो। तो ये बात आपकी यही कट जाती है कि निश्चित रूप से किसी मानव के द्वारा ना जागृत होकर के देवी देवताओं और किसी ऋषि मुनियों, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित देवी है। तो ये सिद्ध पीठ स्थान है, ना कि शक्तिपीठ स्थान है। शक्ति में जहाँ सती के अंग गिरते हैं उसको शक्तिपीठ बोलते हैं, जहाँ पे देवी देवताओं के द्वारा, प्राचीन ऋषियों के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा स्थापना की जाती है उसको सिद्ध पीठ किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि ये जो सिद्ध पीठ स्थान है तो इसकी जो स्थापना की होगी वो देवी देवताओं के द्वारा ही निहित की होगी। तो सर अगर कोई आना चाहे यहाँ पर हवन करवाना चाहे तो किस प्रकार से वो प्रक्रिया होती है? फिर किस प्रकार से वो आते हैं और क्या उनको मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको पैसे लगते हैं या जिस प्रकार से क्या उनको सामग्री चाहिए होती है यहाँ इस स्थान पे आके? देखिए,
हवन जो है हमारे यहाँ पे माँ के सम्मुख 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। हमारा जो ये बगलामुखी देवी ट्रस्ट है, ये बड़े ही सुचारू रूप से श्रद्धालुओं के साथ बैठ करके उनसे बातचीत की जाती है। तदुपरांत हमें उनकी समस्याओं को सुना जाता है। उस प्रकार से आगे जा करके हम उनकी समस्याओं का समाधान के लिए उनको बताया जाता है कि इस प्रकार से आपकी ये पूजा होगी और इसका ये आपका खर्च आएगा। तो वो श्रद्धालुओं से बातचीत करके हम निर्धारित करके कौन सी पूजा उन्हें करानी है और किस पूजा का फल उनको मिल सकता है। बाकी हमारा जो बगलामुखी देवी ट्रस्ट है, उसके हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं आदरणीय महंत रजत गिरी जी, ये सब उन्हीं का विजन है कि उनका मूल उद्देश्य यही है कि एक तो मंदिर में सफाई होनी चाहिए, दूसरा जो के श्रद्धालु यहाँ पे आए वो हर तरह से संतुष्ट होकर जाना चाहिए। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही कि हम श्रद्धालुओं की बात सुनते हैं, तदुपरांत उनकी बातों को सुन करके ही आगे हवन के लिए उनको रिकमेंड करते हैं कि कौन सा हवन उनके लिए सहायक होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।